Hello everyone, this is Manisha Gupta from Department of Biotechnology, KCMT College, Bareilly. Today we will discuss about crop improvement by microbes. With an ever-increasing human population, the demand placed upon the agriculture sector to supply more food is one of the greatest challenges in present scenario. क्रॉप स्पीसीज को इम्प्रूव करना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है. Wheat, corn, rice, potato and few others are the most important crops in the world. Methods of crop improvement by microbes. The idea that we can improve the inherited characteristics of crop species is fundamental. आज के टाइम पे हम जितने भी क्रॉप्स को यूज़ करते हैं उनमें से ज़्यादा क्रॉप मॉडिफाइड होते हैं to make them easier to grow and harvest and to increase the quality and quantity of the desired product. Microbes play an important role in crop improvement. Biopesticides. Biopesticides are pest management tools that are based on beneficial microorganisms like bacteria, viruses, fungi and protozoa or other safe biologically based active ingredients. बायोपेस्टिसाइड्स को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है. माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स एंड प्लांट पेस्टिसाइड्स. Microbial pesticides include microorganisms such as bacteria, fungi, nematodes, protozoa, yeast and viruses. Microbial pesticides अपने टारगेट पेस्ट के अगेंस्ट ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. Biochemical pesticides are naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. For example, insect sex pheromones and plant extracts inhibit the growth and reproduction of the target pest. Plant pesticides are pesticidal substances that plants produce from genetic material that has been added to the plant. For example, BT cotton, जिसमें Bacillus thuringiensis से पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट करके जब इंसर्ट कराया गया तो वह प्लांट खुद में पेस्टिसाइडल प्रोटीन डेवलप करने लगा. बायोफर्टिलाइज़र्स. बायोफर्टिलाइज़र्स एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें जब अप्लाई कराया जाता है प्लांट की सरफेस पे, सीड पे या सॉइल पे, दे कोलोनाइजेस द राइजोस्फीयर और इंटीरियर ऑफ द प्लांट and provide basic nutrients to the plant. Microorganisms which act as biofertilizers are bacteria, cyanobacteria, mycorrhizal fungi. Bacteria and cyanobacteria have the property of nitrogen fixation, means conversion of molecular or dinitrogen into nitrogen compounds. Mycorrhizal fungi फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज्ड करके प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं. वेरियस बायोफर्टिलाइजर्स आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल्स एजोटोबैक्टर, बैसिलस स्पीसीज. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, एग्जांपल्स एनाबेना, नोस्टॉक. लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सच ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हायर प्लांट के रूट के आसपास रहते हैं विदाउट डेवलपिंग एनी इंटीमेट रिलेशनशिप, एग्जाम्पल एजोस्पाइडुलम. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एग्जाम्पल राइजोबियम. दे फॉर्म ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द प्लांट्स. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल एजोला एनाबेना एसोसिएशन. Microphos biofertilizers. They release phosphate from bound and insoluble states. Example, Bacillus and Aspergillus species. Mycorrhiza. It is a mutually beneficial or symbiotic association of a fungus with the root of a higher plant. Types, Ectomycorrhiza and Entomycorrhiza. एक्टोमाइकोराइजा रूट की सरफेस पे रहते हैं. एंटोमाइकोराइजा पेनिट्रेट द रूट एंड एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विद द प्लांट्स. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराया जाता है.
द रिजल्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और जिस जीन को ट्रांसप्लांट किया जाता है उसे ट्रांसजीन कहते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी इंटर स्पीसीज बैरियर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीटी कॉर्न, जिसमें बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट जीन मौजूद होता है। उसमें से ये जीन आइसोलेट करके जब प्लांट के अंदर इंसर्ट कराया गया तो वो प्लांट खुद में पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया। Molecular cloning. The first step in genetic engineering is molecular cloning. Molecular cloning means taking a gene, a piece of DNA out of the genome and growing it in bacteria. The bacteria, usually E. coli, produce large amounts of this particular gene. ये जो क्लोन जीन होता है उससे हम फर्दर रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर लार्ज अमाउंट में प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करके उस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। द बेसिक टूल्स आर प्लाज्मिक वेक्टर जिसे हम कैरियर की तरह यूज़ करते हैं, जिसका काम होता है जीन को कैरी करके होस्ट सेल के अंदर ले जाना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे मॉलिकुलर सीजर भी कहा जाता है, जो कि डीएनए के एक पर्टिकुलर साइट पे कट लगाता है। डीएनए लाइगेज, विच इज़ एन एंजाइम दैट अटैच्ड पीसेस ऑफ डीएनए टुगेदर, एंड होस्ट फॉर प्रोपगेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। The cloning process. Following are the steps of the cloning process. First step is cut genomic DNA with a restriction enzyme, then cut plasmid vector with the same restriction enzyme, then the cleaved vector and the cleaved fragment को join करना है with the help of DNA ligase enzyme. Put the recombinant DNA back into E. coli by transformation process. Then grow lots of the E. coli containing your gene. Transgenic plants. Once a gene of interest has been identified and cloned, it must be put into the plant, usually done with plant tissue culture. To make transgenic plants, DNA gets put into the tissue culture cells by many methods. For example, microinjection, इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गन मेथड। जीन गन मेथड में गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर डीएनए की कोटिंग करी जाती है और उसे प्लांट सेल की तरफ हाई वेलोसिटी के साथ टारगेट किया जाता है, जिससे कि वो डीएनए उनके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए में जाके इंसर्ट हो जाए और ट्रांसजेनिक प्लांट का फिर फॉर्मेशन होता है, जब ये सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, प्लांटलेट बनाते हैं और फाइनली एक कंप्लीट प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।